Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about media and democracy. Learning objective types of mass media, role of media in democracy, Right to Information Act 2005, public opinion, the government and media. In democracy, media plays a significant role. Media provides us the complete and latest information about the important event taking place around us. It is through the media that we are able to know about the working of the government for the welfare of its citizen, and media keeps a close eye on democracy. तो मीडिया हमें सब तरह की इन्फॉर्मेशन देती है, और ये मेनली दो तरह का होता है, एक होता है प्रिंट मीडिया और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। और मीडिया की सब तरफ नज़र होती है, देश में क्या हो रहा है, देश के बाहर क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब मीडिया की वो है। और हमें मीडिया को थैंक भी बोलना चाहिए कि आज हम जितनी भी न्यूज़ से अपडेटेड रहते हैं वो है मीडिया की वजह से। मीडिया refers to the various ways through which we communicate in society, and for example telephone, television, radio, newspaper. The word media is oftenly is used to collectively refer to radio, TV, newspaper, magazine, internals and several other means of communication. तो मीडिया एक कलेक्टिवली वर्ड है जो उन सब वेरियस टाइप्स ऑफ वेज का जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आ गए, चाहे वो ऑडियो मीडिया हो जैसे रेडियो, और चाहे वो विजुअल मीडिया हो जैसे टीवी और इंटरनेट। सिंस radio, TV, internet and newspaper are forms of media that reach that million of people on the masses and across the country and the world that are called mass media. तो टीवी, इंटरनेट और न्यूज़पेपर, रेडियो, ये ऐसे मास मीडिया हैं जो कलेक्टिवली एक साथ बहुत सारे लोगों तक हमारे इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं। Media refers to the various ways through which we communicate in society, for example telephone, television, radio, newspaper, etc. The word media is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, magazine, internet and several other means of communication. तो मीडिया है एक मिला जुला वर्ड जो कि सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। सिंस radio, TV, internet and newspaper are forms of media that reach millions of people on the masses across the country and the world, they are mass media. तो मास मीडिया हम बोलते हैं उस मीन्स ऑफ मीडिया को जिससे हम लॉट्स ऑफ द पीपल के लिए एक साथ ही अपनी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ मास मीडिया रेफर्स टू द कम्युनिकेशन डिवाइस विच कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज ऑडियंस। तो मास मीडिया होता है जब हम लार्ज ऑडियंस के साथ एक साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। टुडे मास मीडिया हैज़ become an inseparable part of our lives. On the basis of the technologies used by media, they can be divided into print media and electronic media. तो प्रिंट मीडिया दो तरह का है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया। Print media, they include newspapers, magazine, book, periodicals, journals and these things are printed document, they are collectively called print media. तो इनको बोलते हैं print media, ठीक है। तो ये है newspaper, magazines, book, periodical, journals, ठीक है। Then we have electronic media, TV, radio, internet etc. are called electronic media. They are called so because we need electricity to access them. तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं जैसे रेडियो, इंटरनेट और टीवी, ठीक है। देन वी हैव पब्लिक ओपिनियन रेफर्स टू द व्यू ऑफ कॉमन पीपल ऑन इशू दैट इंटरेस्ट देम। इट इज़ नाइदर द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट नॉर द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी। तो पब्लिक ओपिनियन होता है, ना ये एक्सपर्ट के ओपिनियन होते हैं ना ही मेजॉरिटी का ओपिनियन होता है, जहाँ पे सभी लोगों के कॉमन लोगों के इशू हैं और उनके इंटरेस्ट हैं। बट इट इज़ द ओपिनियन ऑफ ओनली दोज पीपल हु आर कंसर्न अबाउट अ पर्टिकुलर इशू। तो ये पब्लिक ओपिनियन है उन लोगों का ओपिनियन जो जिसमें कि पर्टिकुलर लोगों का इशू है। देन वी हैव डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पब्लिक ओपिनियन ऑन वेरियस इशू बिकॉज इट derives authority from the public. In a representative democracy, every government has to think about people reaction to its policies and decision. तो डेमोक्रेसी है सबके लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इशू होते हैं, किसी एक का इशू नहीं होता, सबके इशू होते हैं, ठीक है, सब लोगों के, और उसी के बारे में डेमोक्रेसी लेती है कंसर्न। देन इफ इट वांट टू कम टू पावर अगेन इट हैज़ टू डू सो। Strong public opinion plays a very significant role in forming and retaining the government after the general election. तो जनरल इलेक्शन के बाद strong public opinion एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीडिया इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन डीपली, इन फैक्ट पीपल ओपिनियंस अबाउट एन इशू इज बेस्ड ओनली द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय मीडिया। तो मीडिया इन्फ्लुएंस करती है उन पब्लिक ओपिनियंस को जो कि मीडिया को दिए जाते हैं पब्लिक के द्वारा। सिंस एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड अवेयरनेस एंड ओपिनियन हैज़ बिल्ट, इट इज़ द मीडिया which spread information and help citizen to make up their minds. तो जो opinions होते हैं ये लोगों को mind make up करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। In this way the media shapes public opinion.
On the basis of the opinion made, people often make the government aware of their reactions to its working and decision. तो मतलब ओपिनियन के ऊपर लोग ना रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं कि वो ये देखते हैं कि कौन सी सरकार ने हमारे लिए क्या काम किया है और उस हिसाब से वो अपने लिए गवर्नमेंट चूज करते हैं. They do these by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest and signature campaign and asking the government to rethink its program, etc. Role of media in a democracy. In a democracy, people have the freedom of speech. लोगों के पास speech of freedom है, and this means that they are free to express their views and opinion and any issue. तो इसका मतलब है कि वो लोग अपने views issue को रखने के लिए बिल्कुल free हैं. It is through media that people express themselves to the masses. Media play various role in democracy. Media provide us with the complete and latest information about the important events taking place around us. तो मीडिया हमारे जो चारों तरफ की दुनिया है उसके सारे कंप्लीट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रखती है. इट इन्फॉर्म अस अबाउट द पॉलिसीज ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द कंट्री. इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी आर एबल टू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीज़न. तो ये हमारी मीडिया ही है जो हमें बताती है कि सरकार, हमारे देश की सरकार और बाहर की सरकार क्या मिलजुल के हमारे लिए निर्णय ले रही है, क्या डिसीजन ले रही है और वो ठीक से काम कर रही है भी या नहीं लोगों के हित में. In order to perform intelligent opinion, we need correct and unbiased information about the different happenings and around us. Media help us in regard. तो मीडिया हमें ये जानने में हेल्प करती है कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो हमें अनबायस्ड होकर बताई जाए. द मीडिया प्रोवाइड अस अ फोरम फॉर डिस्कशन एंड डिबेट ऑन वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू. The people from all quarters of the society, from common people to the expert of the various field of knowledge participate in these discussion. तो अलग अलग मीडिया के जो लोग होते हैं वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और एक बहस के डिसीजन तक पहुंचते हैं कि क्या सरकार सही में काम कर रही है. अलग अलग मुद्दों पर ये डिबेट्स होते हैं. दे एक्सचेंज देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियन ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. यू मे हैव वॉच्ड और लिसन टू सच डिस्कशन ऑन द डिबेट्स ऑन वेरियस चैनल्स ऑफ टीवी एंड रेडियो. तो इस तरह के जितने भी डिबेट्स हैं आप टीवी रेडियो पे या टीवी पे या रेडियो पे सुन सकते हैं. द मीडिया सेट्स द एजेंडा बाय फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. बाय फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर इशू द मीडिया इन्फ्लुएंस आवर थॉट, feeling and action and bring those issue on our attention. तो मीडिया एजेंडा सेट करती है और हमारे जो पब्लिक इशू होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं उनको लाके सामने रखती है. ठीक है, और देखती है कि लोगों का उस पर क्या फीलिंग है, लोगों का उस पर क्या रिएक्शन है. दस द मीडिया हेल्प अस इन शेपिंग आवर थॉट्स and is set to set the agenda, but such agendas have both positive and negative effects in the democracy. तो ऐसे जो मीडिया एजेंडा सेट करते हैं इनके दोनों ही तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव ही रिएक्शंस होते हैं. द मीडिया एजेंडा हेल्प अस बाय फोकसिंग ऑन द इशू दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ. तो मीडिया एजेंडा जो हमारी लाइफ को फोकसिंग ऑन द इशू ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, तो फोकस करता है कि हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द मीडिया पब्लिश रिपोर्ट अबाउट द अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन कोल्ड ड्रिंक्स. डिस्पाइट द गवर्नमेंट रेजिस्टेंस, द मीडिया डिक्लेयर द फैक्ट दैट कोल्ड ड्रिंक वर अनसेफ. तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि मीडिया ने ये दिखाया कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनमें कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहा है और ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है. ठीक है, तो डिस्पाइट द गवर्नमेंट रेजिस्टेंस के बावजूद भी मीडिया ने ये प्रूफ किया कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है ये हमारे लिए अनसेफ है. समटाइम्स द मीडिया डज नॉट सेट अप्रोप्रिएट एजेंडा टू रेज important issue. For example, the media has a wide coverage on the Indian Premier League like IPL cricket matches, but at the same time it neglects the issue that like safe drinking water, sanitation etc. that are major problems being faced by people. तो मीडिया भी एजेंडा सेट करती है कि कब क्या दिखाना है, कब कौन सा इशू यहाँ पे टीवी पे दिखाना है. ठीक है, लाइक IPL चल रहे हैं तो वो IPL पे फोकस करेंगे और बाकी जो अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, वो वाले मुद्दे भूल जाएंगे, लोगों को नहीं दिखाएं, वो टीवी पे नहीं दिखाएंगे, तो लोगों का ध्यान कहाँ जाएगा, IPL की तरफ जाएगा. ठीक है, media is considered to be the fourth pillar of democracy. The main aim of the media is to provide people with information on the various issue of public interest. Such information is necessary for good governance. तो मीडिया जो है हमारे फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का और इनको बिल्कुल ट्रू जो है न्यूज़ पास ऑन करनी चाहिए पब्लिक की तरफ जो उनके वेलफेयर के लिए अच्छा हो. मीडिया प्रोवाइड्स द लिंक्स बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, सो द मीडिया
शुड फॉलो द फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक्स। तो मीडिया क्या है, गवर्नमेंट और लोगों के बीच का एक लिंक है, ठीक है। तो हम मीडिया तक अपनी बात पहुंचा दें तो वो डायरेक्टली सरकार तक पहुंच जाती है और उनको कुछ कोड्स को फॉलो करना चाहिए। मीडिया शुड गिव ओनली दोज रिपोर्ट्स दैट आर बेस्ड ऑन फैक्ट। तो उन मीडिया को वही रिपोर्ट देनी चाहिए जो फैक्ट बेस्ड हो। दे शुड नॉट पब्लिश और ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट, मिसलीडिंग और डिसऑर्टेड। तो उनको गलत न्यूज़ को बिल्कुल भी ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। एवरी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर इट इज़ मेड पब्लिक। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होने से पहले बिल्कुल वेरीफाई होनी चाहिए। मीडिया शुड provide information in an unbiased manner, that is information should be balanced. A balanced report is one of the discuss all a point of view of particular story and then present it to the readers to make up their minds. तो मीडिया को सबको बिल्कुल अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जिसमें किसी भी तरह की कोई झूठ मतलब और कुछ भी अदर चीज़ें उसमें एडअप नहीं ना की गई हों। बट राइटिंग अ बैलेंस रिपोर्ट डिपेंड अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन should control and influence its coverage of news. It should be free for publishing the news of its choice, but no one should control the media by telling what to publish and what not to publish. ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए चाहिए कि कोई उसको कंट्रोल ना कर सके। अगर एक सही जो हमें अनबायस्ड हमें चाहिए मीडिया, तो उसके लिए मीडिया को होना चाहिए कि उनको कोई भी खरीद ना सके, उनको कोई भी कंट्रोल ना कर सके। बट इन रियलिटी द मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। बट रियलिटी में जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट से बहुत दूर है, क्योंकि वेरियस ऑफ गवर्नमेंट्स, वेरियस ऑफ मिनिस्टर्स उसको कंट्रोल करके रखते हैं और पब्लिकली एजेंडा चला के वही न्यूज़ दिखाई जाती हैं जो उनके इंटरेस्ट में होते हैं, जो मिनिस्टर्स के इंटरेस्ट में होती है या गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में होती है। देन ह्यूमन डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द मीडिया। द मीडिया शुड maintain the dignity of every human being. It should also respect people's privacy. तो मीडिया को सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, सबकी डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए। The media should protect the interest of nation or society. It should be very cautious while presenting any news that and many threaten the society or unity is in the of the nation. तो मीडिया को सबके जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको उनमें इंटरेस्ट देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किससे किसी को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, और हमारे देश की सिक्योरिटी और यूनिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल द न्यूज़ ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन टू रिलीजियस और कल्चरल ग्रुप्स। तो इस तरह से अगर जो हमारी इन मीडिया है वो दो ग्रुप्स का और डिस्प्यूट दिखाएगी या कल्चरल ग्रुप का झगड़ा दिखाएगी तो उससे क्या होगा, हमारी यूनिटी ख़राब होती है। द मीडिया शुड नॉट पब्लिश और ब्रॉडकास्ट दोज इमेज और एक्सप्रेशन दैट आर रूड और ऑप्शंस। रूड ऑप्शंस वाले पोजीशन उन्हें नहीं दिखाने चाहिए। इफ एन एरर इज फाउंड इन एनी न्यूज़ गिवन बाय द मीडिया इट शुड बी प्रॉम्प्टली पब्लिश्ड एंड ब्रॉडकास्ट द करेक्ट वर्जन ऑफ द न्यूज़। तो अगर मीडिया से कोई न्यूज़ दिखाने में गलती हो गई है तो उसका सही वर्जन उनको ज़रूर से दिखाना चाहिए। इट शुड बी अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक, और गलती के लिए मांगनी चाहिए माफ़ी। क्योंकि मीडिया क्या दिखा रही है ना, ये लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि अच्छा मीडिया दिखा रही है, टीवी पे ये चीज़ आ रही है तो ये सही होगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही नहीं होती है। द गवर्नमेंट एंड मीडिया इन अ डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ द कंट्री हैव अ राइट टू नो अबाउट द वर्किंग एंड पॉलिसीज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास ये चॉइस होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और काम के बारे में जान सकते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। सो आवर गवर्नमेंट यूजेज मास मीडिया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एज वेल एज एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ये मास मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लोगों को दिखाने के लिए वो क्या हेल्थ एजुकेशन चला रहे हैं, क्या वो एंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं। इट ऑल्सो ओन्स सम मीडिया यूनिट्स लाइक द पब्लिकेशन डिवीजन। तो ये मीडिया यूनिट्स को भी कंट्रोल करते हैं। द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द प्रसार भारती विच इंक्लूड्स ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन एक्सेट्रा। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन and broadcasting in the central government looks after all these units. This ministry is responsible for developing, regulating and sending our information. तो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहती है और वो देखती है कि सभी यूनिट्स अपना ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। Then we have freedom of media in a democracy. The media works as watch डॉग इन अ डेमोक्रेसी। तो वॉच डॉग की तरह मीडिया काम करती है डेमोक्रेसी में। एनी एक्टिविटी और डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इज़ रिपोर्टेड इन द मीडिया। तो कोई भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो रहा है उसको मीडिया क्या करती है, रिपोर्ट करती है।
people discuss debates and form opinion on the different issue because of the information provided to them by media. While maintaining its freedom, the media needs to be authentic, honest and impartial. तो कोई भी फ्रीडम को मेंटेन करते हुए मीडिया को होना चाहिए नीड्स टू बी ऑथेंटिक, सच्चा होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड इम्पार्शल होना चाहिए. देन इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रिएटिंग ओपिनियन एंड सपोर्टिंग ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एटीट्यूड्स. द मास मीडिया कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस पीपल टू टेक एक्शन. मास मीडिया लोगों को एक्शन के लेने के लिए भी इन्फ्लुएंस करती है. Then we have Right to Information Act 2005. A public movement began in the state of Rajasthan in 1990 that demanded the right to information. तो ये पब्लिक मूवमेंट हुआ 1990 राजस्थान में जिसने बोला राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए. द पीपल हु वर एम्प्लॉयड इन पब्लिक वर्क्स वर बीइंग डिनाइड फ्रॉम देयर फुल वेजेस. तो जो पब्लिक वर्क में काम करते हैं उनको फुल वेजेस नहीं मिल रहा था. व्हेन दे वांटेड टू सी द रिकॉर्ड्स टू क्लेम देयर फुल वेजेस, द गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू शो देम on the grounds that such records are secret document of the government. तो जब वो लोग देखना चाहते थे कि हम अपना देखना चाहते हैं कि फुल वेजेस का हमारा क्या रिकॉर्ड है, तो गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर्स थे उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, इस पर कुछ नहीं हो सकता. लेटर एन NGO नेम्ड द मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS रेज द पब्लिक इशू. तो फिर ये MKSS संगठन ने उठाई आवाज़ लोगों के हित में. इट एम टू गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द पब्लिक वर्क्स. द MKSS ऑर्गेनाइज पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, धरना एक्सेट्रा इन सेवरल टाउन्स ऑफ द राजस्थान. तो जो लोग थे उन्होंने MKSS के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने कैंपेन चलाए. लेटर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पास लॉ ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन इन 2000. तो 2000 में पास किया गया एक लॉ जिसका नाम था राइट टू इन्फॉर्मेशन. सेवरल अदर स्टेट ऑल्सो passed their law on this regard. Ultimately in 2005 the central government passed the Right to Information Act came into force in India in October 2005. 2005 में आया Right to Information Act. The main provision of the act are as under. The act gives the citizen a legal right to get information from the government on issue that concern them. तो ये एक्ट हमें देता है कि लोगों को जानकारी जानने का पूरा अधिकार. The authorities have to provide the information sought by people within 30 days of filling of application. This is a compulsory provision. तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन भर के देनी होती है जिसमें 30 दिन के अंदर अंदर अथॉरिटी आपको देगी इन्फॉर्मेशन. If the matter concern the life and liberty of the applicants, answer will have to be given in 48 hours. और अगर कोई किसी की ज़िंदगी मौत का सवाल है तो अथॉरिटी को आंसर देना पड़ेगा 48 घंटे में. एवरी पब्लिक इंस्टीट्यूशन और बॉडी दैट इज एस्टेब्लिश कंट्रोल और funded by government must maintain its record in such way that such records are easily accessible to the people. तो जो भी कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट जिनको फंड करती है, तो वो उनके पास ये पूरे रिकॉर्ड होने चाहिए कि जब कोई मांगे तो वो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करा सकें. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट द गवर्नमेंट बॉडीज हैव बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इन देयर वर्किंग. सेंसरशिप, मूवीज, TV serial, advertisement, books and even lyrics of a song are checked by authoritative bodies like the Censor Board of India. तो चाहे हम मूवी बनाएं, चाहे TV सीरियल बनाएं, चाहे एडवर्टीजमेंट या गाने के लिरिक्स, ये सब सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा लिखे चेक किए जाते हैं. These are times when some content has to be removed or certain material has to be stopped from releasing. तो ये होता है कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा सीन है या कोई ऐसा लिरिक्स हैं जो उन वहाँ से नहीं दिखाने, जो टीवी पे नहीं दिखाने, पब्लिक प्लेस में नहीं दिखाने, तो उनको हटा दिया जाता है. दिस एक्ट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑफेंसिंग कंटेंट और बैनिंग ऑफ सर्टेन मटेरियल इज कॉल्ड सेंसरशिप. और इसी को ये एक्ट ऑफ रिमूवल ऑफेंसिव कंटेंट, ऑफेंसिव कंटेंट को हटाना या बैन कर देना, इस तरह के जो एक्ट बनाया गया इसको बोलते हैं सेंसरशिप. सेंसरशिप इज डन टू चेक फॉर ऑफेंसिव, अब्यूजिव or obscene word, action and scenes. Then we have fact check. News is not censored in normal condition. न्यूज़ को सेंसर्ड नहीं किया जा सकता है. इट इज़ सेंसर्ड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, एनी abnormal सिचुएशन. तो इसको सिर्फ abnormal सिचुएशंस में ही इसको सेंसर किया जाएगा. कीवर्ड्स, मीडिया, द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट सोसाइटी, मास मीडिया, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सच एज न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो एंड इंटरनेट दैट रीच द इन्फ्लुएंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल. publish
news report, article, interviews, stories, etc. that are printed in newspaper, magazine and books for a wide audience to read. Censorship, the act of removal of offensive content or banning of certain material. Broadcast, a TV or radio program that is widely transmitted. Point to know, media is a collective term used for representing the main means of communication. Media gives us a wide range of information which help us to form opinion on important issue. Mass media refers to communication device which can be used to communicate with a large audience. It can be divided into print media and electronic media. Public opinion may be defined as an expression of view of the general population on the particular issue. Media affects our social, political and economic decision making. It acts as a bridge between the people and the government. Media acts as watchdog on the power of the government and prevents corrupt practices from going unnoticed. Media must be honest, authentic and impartial. RTI gives citizens to the right to seek and get information from any public authority. Censorship is done to check for offensive, abusive and absent text, word, action or scene in media source. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.